Hello, Okay, am sir. I audible? Yes, yes, sir. Yes, sir. Hi, sir. Hi. Let me introduce you to the audience. Sir, can you stop the other live? It's coming. Am I audible now? Yeah, you are audio. Just stop. My voice is coming 2 times. Is it? Yes, sir. Can you hear me? Yes. Hi, sir. So let me introduce you to all our audience. Welcome, sir. His name is Nikhil Chaudhary. He's a psychologist and he has an organization called Dr. Psycho. Right. So we cannot see you right now. Hello, sir. Yeah, you are audible, sir. I cannot see you. So can you? Hello. Until then, anybody is having some questions, they can ask in the comment section. Hello. Hello. Sir, is if the live user shut it down. Hello. So we can hear you. Hello. Yeah, you are audible, sir. You cannot hear me? Yes, now I Okay. can hear you. Perfect. Okay. Very good evening and sorry for the No, glitch. not an issue, sir. Not an issue. Okay, welcome, sir. So, as our topic is, जो आज हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिलेशनशिप. थोड़ा सा मैंने इस टॉपिक के बारे में बताया है, जैसे कि व्यूवर्स को मैं फिर से बताना चाहूंगा. ये 3 टाइप के रिलेशनशिप्स एक पर्सन के लाइफ में होते हैं. फर्स्ट होता है उसकी फैमिली या फ्रेंड के साथ में, दूसरा होता है उसके पार्टनर के साथ में, और तीसरा उसके वर्किंग कलीग्स के साथ में. और इन्हीं से अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर उनकी लाइफ में अगर इनके साथ में आ रही है तो उनको एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है. Am I right? Definitely. So I'm going to ask you for my first question is the basic question which everybody wants to know, that what is anxiety? Okay. So first of all, before answering any of the questions, thank you for inviting me. So you are not audible now. Inspiro Management. Am I now Yes, audible sir. now? Yeah. So I thank you all for joining me for this live chat, or to all my audiences, and to you, Atul, and to Inspiro Management. Thank you, Thanks sir. a lot. So moving on to our question. So my the first question is to know about anxiety. So basically, I would rather signify not as a problem, but as a symptom. Anxiety जो है वो एक problem नहीं है. Can you check your connection again? Yes, it's completely okay. It's completely fine. Yeah, the connection is fine. Go ahead, sir. Okay. So the anxiety part, the anxiety is a symptom. So अगर मैं इसको बहुत लेमैन लैंग्वेज में बहुत सिंपल वे में समझाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा कि किसी भी चीज की अनड्यू स्ट्रेस, अनड्यू वरी, अनड्यू टेंशन जब हम लेने लगते हैं किसी चीज को लेकर, वो किसी बच्चे के स्कूल जाने को लेकर, टेस्ट देने से लेकर,
So your voice is very. This is. So your voice is very breaking. Like, can you connect? Like, can you check your connection again? Sure. I'm connecting it again. इन दैट केस कोई भी व्यूअर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है एंजाइटी या डिप्रेशन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या सर, कैरी ऑन। हेलो 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 So can you hear me? Hello. So I cannot hear you, sir. Can you like आप ईयरफोन हटा देंगे तो ज्यादा बेटर आवाज आएगी सर, आई गेस। एक बार आप ईयरफोन हटा के देखिए। Again try. I will try to connect him. Yes, sir. Hello. Can you hear me, sir? Hello. Hello, sir. All right. Network is not at all good. Hello. Is it okay now? Yes, sir. Much better, sir. Much better. Thank you. Okay. So yeah, apologies to all the viewers for this. Yes, sir. Not an issue. Oh, okay. We'll be continuing. It. So I was talking about anxiety. हम लोग anxiety के बारे में बात कर रहे थे. So let's do it for a very interesting thing. Anxiety is what I am feeling now. Okay. This is what is anxiety. Okay, I have prepared everything for this particular live chat, being very excited for something, and this last minute glitch can create an anxiety. Okay. But we have various such circumstances which happens with us at the last moment, and this creates a problem or a distress, and this is known as anxiety. इस particular moment में जो मैंने बहुत
बहुत माइन्यूट वे में अभी जो फील किया, ये एक बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल हो सकता है एंजाइटी को लेकर। कोई भी ऐसा इंटेंस फियर या कोई भी एक वरी जो आपको किसी अपने गोल तक पहुंचने से रोकती है, वो आपके लिए एक एंजाइटी का सिम्टम होती है या एंजाइटी का सिग्नल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही सर मैं चाहूंगा कि मतलब जैसे कि आपने एंजाइटी के बारे में बताया, इससे ज्यादा काफी सीवियर चीज जो लोग जो महसूस करते हैं वो है डिप्रेशन। और ज्यादातर फेमिलियर वर्ड है लोगों को, एक यूथ के अंदर भी, और फेमिलियर वर्ड है डिप्रेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंड कैन यू जस्ट टेल मी द व्हाट इज डिप्रेशन एंड हाउ व्हाई इट हैपेंस टू पीपल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ओके, बिफोर गोइंग ऑन टू द डिफरेंस, मैं डिफरेंस पे जाने से पहले एक बार डिप्रेशन के बारे में एक बेसिक सी चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये मानते हैं कि उनको कभी डिप्रेशन हो ही नहीं सकता, लेकिन उनके लिए एक फैक्ट और एक फिगर मैं बता देना चाहता हूँ कि वर्ल्ड के 40% ऑफ यूथ जो है WHO के अकॉर्डिंग, वो उन लोगों को डिप्रेशन है। ओके, सो ये हो सकता है, ये कोई बहुत इस तरह की बीमारी नहीं है जो ट्रीटेबल नहीं है, ये डेफिनेटली ट्रीट की जा सकती है। और डिप्रेशन इज समथिंग जब आपको 2 वीक्स या उससे ज्यादा सैडनेस फील होती है, आप किसी काम में आपका मन नहीं लगता, आप इरिटेटेड फील करते हैं, या आप वर्थलेसनेस फील करते हैं, आपको सोशल होने का या सोशल गैदरिंग्स में जाने का, लोगों से मिलने का, बात करने का मन नहीं करता, या कुछ ऐसी सुसाइडल टेंडेंसीज जो है वो आपके अंदर धीरे धीरे ग्रो होने लग रही है, और ये इस चीज को काफी टाइम हो चुका है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर कैन बी माइन्यूट साइंस ऑफ डिप्रेशन इन दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। और डिप्रेशन को कई सारी कैटेगरीज में बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर साइंस एंड सिम्टम्स, विच कैन बी सिंपल, विच कैन बी माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन एंड प्रोफाउंड डिप्रेशन। सो जैसे कि हम आज यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे बिना किसी क्लिनिकल टर्म्स को यूज किए हुए। तो डिप्रेशन वो हो सकता है जो आपको किसी भी काम को, आपके डेली रूटीन को कंप्लीट करने से रोकता हो, और उस वजह से आपकी लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है इन अ नेगेटिव वे, देन इट कैन बी टर्म्ड एज अ साइन ऑफ डिप्रेशन। ओके, so can you just give me the difference, as we have discussed about the depression and anxiety, so can you quickly like say that what are the difference between if somebody is having a depression or he's having a anxiety? ओके, सो डिप्रेशन एक बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है किसी चीज का, कि अगर उसको ये सारे सिम्टम्स हैं तो उसको डिप्रेशन है, लेकिन एंजाइटी इज अ वेरी जनरलाइज्ड टर्म। एंजाइटी किसी को भी कभी भी कहीं भी हो सकती है। आप एग्जाम देने पहुंचे, आप एग्जाम लिख रहे हो, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, वो एक एंजाइटी हो सकती है। आप ऑफिस के लिए निकले हो, लेकिन आप रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए हो और आप लेट पहुंचे फॉर योर मीटिंग, ये एंजाइटी हो सकती है। आप किसी वेबिनार या किसी पॉडकास्ट के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो और लास्ट टाइम आपको टेक्नोलॉजिकली ग्लिच हो जाए, विच आई जस्ट सफर्ड, ये एक एंजाइटी हो सकती है। ओके, सो डेफिनेटली अभी जो स्पेशली इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन, people are facing various types of anxieties and depression with family members, some with spouse, some at workplace, because कई बार वो अपना काम ढंग से प्रॉपर तरीके से करके नहीं दे पा रहे हैं अपने फैमिली रिलेशंस के साथ, क्योंकि अब they have to live in the same house under a same roof। तो this again gives opportunity कि आप सामने वाले को समझो भी, और साथ साथ में आप उनके साथ एडजस्ट भी करो, और जहां डिसएडजस्टमेंट है वहां एंजाइटी है। या वन क्वेश्चन, एज वो ऊपर चला जाएगा इसलिए मैं पहले से पूछ लेता हूँ। मोनिका राठौड़ इज आस्किंग दैट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द एंजाइटी इज वर्किंग इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे? ओके, सी एंजाइटी एक चीज है जिसकी वजह से होती है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं, और एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस, जिसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। सो एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपके एग्जाम्स हैं, ओके, और आपको एग्जाम्स आने की कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम्स में पास करने का कोई वरी नहीं है, यू आर एज कूल एज नॉर्मल डेज, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ एंजाइटी मस्ट बी देयर, मिनिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस मस्ट बी देयर, और इसको पॉजिटिव स्ट्रेस कहा जाता है। लेकिन जब ये स्ट्रेस एक लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है,
तो ये डिस्ट्रेस का कारण बन जाता है, और उस डिस्ट्रेस की वजह से हमको एग्जाम के जस्ट एक रात पहले नींद नहीं आती, हमको खाना नहीं पाता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें, सिम्टम्स है जो हमारे अंदर नजर आने लगते हैं, जो कि हमारे परफॉर्मेंस लेवल को गिराते हैं। दिस इज नोन एज डिस्ट्रेस, और ये शो करता है कि आपकी जो एंजाइटी है वो एक लिमिट के बियॉन्ड जा चुकी है, और अब आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो रही है। वन आकांक्षा इज लाइक, वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं इसके अंदर कि कैन वी से एंजाइटी इज फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड डिप्रेशन इज फॉर वीक्स, एम आई राइट? लाइक इज दैट व्हाट इट इज? Yes, we can say that. Of course, we can say that. It's a very nice statement by Akanksha. Thank you. So, yes. Anxiety कभी भी हो सकती है, कितनी देर के लिए भी हो सकती है. It can be in episodes. It can be an attack. It can be, लंबे समय तक चलने वाली एक सिम्टम हो सकता है. लेकिन जो डिप्रेशन है वो एक बार जब आपके अंदर आएगा, ये डिप्रेशन ऑल्सो हैज एपिसोड्स, बट जनरली ये ग्रो करता है, ग्रेजुअली आपके अंदर ग्रो करता है. और ये चीज आपको बताती है कि एंजाइटी कैन बी, इट कैन बी रिड्यूस्ड और इट कैन बी ट्रीटेड इन मिनट्स. लेकिन डिप्रेशन को ट्रीट करने में और उसको रिड्यूस करने में इट टेक्स टाइम. यस सर. प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग एंड थेरेपीज आर रिक्वायर्ड बेसिकली फॉर बोथ. ओके. सो सर, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि खुद जो पर्सन होता है, जो पर्सन ये चीज समझ नहीं पाता है कि यार मेरे को स्ट्रेस हो रहा है या फिर मेरे को एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि यार मेरे को नींद नहीं आ रही है, या फिर इसकी वजह से हो रहा है, या फिर मैं सिर्फ मतलब कुछ मेरी हैबिट्स चेंज करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, ये सारी चीजें. तो बहुत सारे लोगों को इसको ऐसा लगता है कि जो डिप्रेशन, मेरे को डिप्रेशन नहीं है, मेरे को जस्ट एक कोई मतलब सीवियर मेरे को नींद नहीं आ रही है इसलिए ये चीज हो रहा है. तो व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, जिससे कि खुद पर्सन को भी पता चल जाए कि हाँ मेरे को डिप्रेशन है और मैं इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ. ओके. सो सबसे पहले एक डिप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक नॉलेज होती है, नॉलेज ऑफ सेल्फ. अगर आपको आपके बारे में, आपको खुद के बारे में पता है, तो हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और किस एरिया में है. ओके. सो दिस कैन बी ऑन द थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स. अगर हम किसी चीज को स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमको उस जगह से वापस रिस्पॉन्स प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है. इस चीज को टेस्ट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, हम अलग अलग एरियाज में अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि हम हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, हमारी वर्थ, हमारी होपफुलनेस कितनी है, किस लेवल पे है. और अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें डाउनग्रेड जा रही है या नेगेटिव वे में जा रही है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जब आप अपना इंटरेस्ट खोने लगते हो, जब आप अपनी वर्थ नहीं समझ पा रहे हो, आप होपलेसनेस आ रही है आपके अंदर, आप बहुत इरिटेटेड फील कर रहे हैं और आपका सोशल कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है, यू आर कीप ऑन क्राइंग, आप बहुत ज्यादा छोटी छोटी बात पे रो देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बीइंग डेड इज मच मोर देन बीइंग अलाइव, आपको लगता है कि मरना ज्यादा बेटर है अभी मेरे लिए. ये कुछ चीजें हैं, सॉरी फॉर यूजिंग द नेगेटिव वर्ड, बट यस, ये कुछ चीजें हैं, ये फैक्ट हैं जो मैंने कई बार अपनी थेरेपीज में, अपनी काउंसलिंग सेशंस में लोगों से सुना है कि सर हमको मरना ज्यादा बेटर लगता है जीने से. सो these are some of the signs जो आपको आपका बॉडी, आपकी माइंड ये सब प्रोवाइड करती है कि yes there is a problem and it can be termed as the depression thing. So यहाँ पर this is an alarm basically. ये कुछ अलार्म्स हैं जो हमको कैच करने होते हैं so that हम टाइमली इसको डायग्नोस कर सकें और साथ में ट्रीट भी कर सकें. कुछ क्विक क्वेश्चंस, जैसे कि राधिका ने सेम क्वेश्चन पूछा था जो मैंने अभी पूछा है, हाउ कैन अ पर्सन आइडेंटिफाई इफ ही इज हैविंग अ डिप्रेशन, जो आपने अभी बताया. एक और क्वेश्चन है, पीपल से दैट थिंग्स, दीज थिंग्स आर नॉट क्यूरेबल, इज इट अ मिथ और अ फैक्ट? डेफिनेटली दिस इज अ मिथ, क्योंकि अगर ये क्यूरेबल नहीं होती तो डिप्रेशन के बाद इंसान के पास और कुछ नहीं बचता, या तो वो एंड अप होता किसी मेंटल असाइलम में या किसी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के वार्ड में, या फिर ही मस्ट हैव बीन नो मोर. सो दिस इज डेफिनेटली क्यूरेबल. इट टेक्स टाइम, क्योंकि हर इंडिविजुअल दूसरे से अलग होता है, वो अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी लेकर बिल्डअप करता है, तो उसकी प्रॉब्लम्स किसी दूसरे की प्रॉब्लम से डेफिनेटली अलग है. हो सकता है उसको टाइम लगे, हो सकता है उसको आप कुछ चीजें जो है वो बहुत जल्दी ट्रीट हो जाए, कुछ चीजों को टाइम लगे, इट डिपेंड्स बेसिकली, लेकिन इट इज डेफिनेटली क्यूरेबल. ऑल यू नीड इज फेथ एंड पॉजिटिविटी इन द ट्रीटमेंट पार्ट. Okay, one more thing, one question is asked that, quick question, is feeling of loneliness a symptom of depression?
यस, अगर वो लोनलीनेस वाली फीलिंग है, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर इन लॉकडाउन, वो अगर लोनलीनेस वाली फीलिंग आपको अभी हो रही है और सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है, जब आप अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपने लव्ड वन से नहीं मिल पा रहे हैं, आप किसी दूसरी सिटी में हैं, वहां यू गॉट स्टक और आप नहीं मिल पा रहे हैं, और वो लोनलीनेस है, दैट इज ऑब्वियस, वो किसी को भी नॉर्मल जनरल वे में हो सकती है। बट बहुत सारे लोगों को भी होता है कि कुछ लोगों, अगर कोई इंट्रोवर्ट है, ज्यादातर लोग अगर इंट्रोवर्ट होते हैं, वो जानते हैं कि वो इंट्रोवर्ट है, वो ज्यादातर फ्रेंड्स नहीं बना पाते, बट फिर भी वो एक लोनलीनेस का शिकार होकर खुद को एक डिप्रेस पर्सन फील करने लग जाते हैं कि नहीं, मैं लोनली हूं, मेरे से कोई बात नहीं करता, या फिर एनीवे दे आर इंट्रोवर्ट बट दे समवॉट नीड ह्यूमन कनेक्शंस। See, this is the difference. There are people who come to me, they say कि सर हम लोग इंट्रोवर्ट हैं, क्योंकि जब उनकी टेस्टिंग होती है तो हमको ये पता लगता है कि वो पर्सन इंट्रोवर्ट है और वो बहुत जल्दी सोशल नहीं हो पाता या खुल के नहीं आ पाता। और जब वो इस तरह की कोई शिकायत करता है कि सर मैं लोनलीनेस फील करता हूं, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि आपने कितनी बार ये चीज की है कि आप खुद सामने से गए हो लोगों के पास to talk or to have a conversation. So a very good and a poppy technique for this is I generally give it to people who are introvert और loneliness का जो शिकार होते हैं वो, कि आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए जिसमें रोज आप नए 5 लोगों से मिलोगे और रोज उनको स्माइल के साथ ग्रीट करोगे, ठीक है? और ये जरूरी नहीं है कि आप उनसे फिजिकल कांटेक्ट में आओ तभी वो ग्रीटिंग रहेगी, वो आप ऐसे वेव भी कर सकते हो, आप उनको वर्चुअली भी मिल सकते हो, एज वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन हियर। सो आप ये चीज भी कर सकते हो, लेकिन द मोटिव इज टू गेट इन कॉन्टैक्ट विथ न्यू पीपल सो दैट आप उस इंट्रोवर्ट में रहकर भी लोनलीनेस को किल कर सको। यस सर। सर जैसे कि ये जो टॉपिक्स है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, आई नो द ऑडियंस, वो बहुत सारे लोग ये चीज फील करते हैं, इसलिए क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ रहे हैं। मैं क्विकली चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी मतलब क्वेश्चंस का आंसर दे दे, सो दैट जो रिकॉर्डेड क्वेश्चंस हैं जो रिलेटेड, जो अपने टॉपिक से रिलेटेड भी है और जो मैं प्रिपेयर करके लाया हूं, उनके ऊपर भी अपन डीप डिस्कशन कर पाए। So again, another question is from Richa Tripathi. Feels like not able to breathe in the middle of my sleep during night. Is it a sign of some anxiety? See, there can be many things to this. मैं इस चीज में बताना चाहूंगा कि किसी भी एक मेडिकल प्रॉब्लम या किसी भी एक फिजिकल प्रॉब्लम का जरूरी नहीं है कि वो उसका जो रूट है वो मेडिकली हो या वो फिजिकली हो या फिर वो मेंटली हो। देयर कैन बी मेनी रीजंस, देयर कैन बी वन रीजन और दी अदर। अगर आप रात को सोते वक्त प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं तो फर्स्टली हमको एक प्रॉपर हायरार्की के थ्रू जाना होता है। हमें ये चेक करना होता है कि इफ आई एम हैविंग कफ और कोल्ड, या मुझे स्नीजिंग का इशू है, या मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, या इस तरह से चीजें हमको डायग्नोस करनी होती है। अगर वो सब चीजें नहीं हो रही है तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि किस वजह से ये चीज है वो हमको ये प्रॉब्लम दे रही है। इफ इन केस यू फाइंड इट कि मुझे ये प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर ड्रीम से रिलेटेड है या पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड है, अगर ये टाइम यहाँ पर है तभी ये प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल रात की 2 बजे जब भी 2 बजती है, 2 बजे के आसपास मुझे इस तरह की ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं, तो हमको उस टाइम को किल करने के लिए उस टाइम से पहले, थोड़ा पहले, या तो आपको उठ के यू नीड टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर और यू नीड टू गो एंड टेक अ वॉक एंड कम बैक, सो दैट वो मोमेंटम टूटना बहुत जरूरी है। सी, इट्स ऑल अबाउट द मोमेंटम पार्ट, इट्स ऑल अबाउट अ साइकिल। वो साइकिल टूटनी जरूरी है, जब तक वो कम नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम्स भी इसी तरह से रहेगी और इनफैक्ट बढ़ती रहेगी। So we need to break that pattern. Yeah, sure. One more question. Antrish is asking, what can a person do if he wishes to help a person who is dealing with depression? Like अगर friend कोई help करना चाहता है तो वो कैसे help कर सकता है depression के person को? Okay. First of all, if you are a friend of a person जिसको depression की problem है, तो मैं सबसे पहले I want to congratulate कि आपको इतना पता है और आप वो साइकोलॉजिकल स्टिग्मा को ब्रेक करने में सक्सेस हुए हो कि हाँ मुझे इस पर्सन की हेल्प करनी है। क्योंकि कई बार होता है लोग उस पर्सन के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसको सिंपैथाइज करते हैं कि दिस बहुत बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तुझे ऐसे कैसे हो सकता है, और उसको शायद और ज्यादा बुरा फील होता है इस वजह से। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग आज भी इस स्टिग्मा में फंसे हैं कि वो अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि यस आई एम हैविंग अ डिप्रेशन। क्योंकि हम जब एज ए साइकोलॉजिस्ट किसी पर्सन को
काउंसिल करना स्टार्ट करते हैं, उसका फर्स्ट सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन लेते हैं, तो उसको ओपन अप होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसको लगता है सामने वाले मुझे जज करेंगे. सो इन दैट केस इट्स वेरी गुड कि आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हो, तो यू शुड डेफिनेटली एम्पैथाइज हिम, उसको हेल्प करने की कोशिश करें, उसको रियलिटी दिखाने की कोशिश करें. और अगर आपको लगता है कि दिस केस इज गोइंग बियॉन्ड माई नॉलेज, तो आप डेफिनेटली किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, किसी साइकोलॉजिस्ट को जरूर इस चीज के लिए लेकर उनसे कांटेक्ट करें, सो दैट आपको प्रोफेशनल और सही समय पर सही एडवाइस और ओपिनियन मिल सके. आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस पब्लिक की तरफ से आ रहे हैं इसके अंदर, बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ जो चीजें मैं प्रिपेयर पहले से करके आऊँ जो टॉपिक से रिलेटेड है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कशन में ही सॉल्व हो जाएंगे. अगर उन क्वेश्चन से रिलेटेड हम और लेंगे क्वेश्चंस जो यहाँ पर आ रहे हैं, बट कुछ क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर लेते हैं. अगर उनसे आंसर मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर वी विल डिस्कस अगेन. ऑलराइट, ओके. सो द नेक्स्ट व्हिच आई वुड वांट टू आस्क इज, जैसे कि मैंने बताया 3 रिलेशनशिप्स होते हैं किसी भी पर्सन की लाइफ में. फर्स्ट इज विद फैमिली फ्रेंड्स, सेकंड इज विद इज स्पाउस और गर्लफ्रेंड वाइफ, एंड द थर्ड वन इज वर्क प्लेस. सो अब इसके अंदर ये चीज आएगा कि अगर कोई भी पर्सन है जो रिलेशनशिप के अंदर है किसी लड़की के साथ में, या फिर इफ ही और शी इज हैविंग, ही इज मैरिड और शी इज मैरिड, ऑलराइट, तो उसके अंदर बहुत सारी एंजाइटी इश्यूज कपल्स के बीच में आते हैं. बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं आफ्टर हैविंग अ ब्रेकअप, अ हार्ट ब्रेकअप. तो उससे रिलेटेड आप इस टॉपिक पे क्या बात करना चाहेंगे? व्हाट आर द सिम्टम्स और उसको कैसे ओवरकम करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारा यूथ ये चीज इसके अंदर सफर करता है कि कोई पर्सन जब ब्रेकअप हो जाता है उसका, तो डिप्रेशन में 3-4 महीने तक लगातार वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसको पता नहीं चलता कि वो ओवरकम कैसे करे उस चीज को. Okay. Yes. So first of all, that's a very interesting question, especially for youth. Okay. Yes. So सब किसी भी रिलेशनशिप के टूटने से पहले जब उसका फॉर्मेशन होता है, तो if anyone of in the audience or any viewer who is listening to this, और अगर वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उसको कोई इस तरह की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि there are 2 important pillars for building any relationship in this world. That is, first is the trust part. Okay, yes. अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, then in that case there is no need of even getting into a relationship. Okay, yeah. And the second and the most important part is the adjustment. क्योंकि आप किसी दूसरे पर्सन के साथ एसोसिएट होने जा रहे हो फॉर लाइफ टाइम और फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, और आप जानते हो कि वो आपकी तरह नहीं है. 2 इंडिविजुअल कभी सेम नहीं हो सकते, इवन ट्विन्स कैन बी सेम. ओके, सो अगर एडजस्टमेंट और ट्रस्ट फैक्टर ये लैक कर रहा है, तो मैक्सिमम रिलेशनशिप के ब्रेकअप्स इसी वजह से होते हैं, जब ट्रस्ट नहीं है और या फिर हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं. अब हम उस स्टेज पे चलते हैं जहां पर किसी पर्सन का ब्रेकअप हो चुका है. मैंने जनरली ये देखा है, देयर आर पैटर्न्स. अगर गर्ल्स ब्रेकअप से बाहर आई हैं, तो दे विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट अ रीबाउंड. ओके, rebound as in to get into another relationship as soon as possible. Okay. And in case of boys, the pattern is to get into substance abuse. Yes, they go and try to have alcohol as an alternative or as a drug as an alternative. Exactly. वो ये सोचते हैं कि इस चीज को करने से मैं इस चीज से बाहर आ जाऊंगा, मैं रिलेशनशिप को कैसे भी करके ओवरकम कर जाऊंगा, which is their biggest mistake. ओके, और रही बात इस चीज की कि आपको कैसे ओवरकम करना चाहिए, तो द बेस्ट पार्ट इज टू सिट एंड टू टॉक. जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो एक बैड रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, अगर ये आपकी चॉइस है कि आपको आपके रिलेशनशिप को बचाना है या उससे ओवरकम करना है, लेकिन दोनों ही केस में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर को सामने बिठाइए और उनसे बात कीजिए. क्योंकि जो 2 देश होते हैं वो आपस में सामने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठ के वर्ल्ड वॉर तक रोक सकते हैं. सिर्फ बात करने से, सिर्फ कम्युनिकेट करने से और सिर्फ अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली शेयर करने से भी कई सारे रिलेशनशिप्स बच जाते हैं. और अगर आप अल्टीमेटली ब्रेकअप कर चुके हैं, इसके अंदर ये चीज फील करते हैं कि इवन इट हैपेंस विद अ बॉय और अ गर्ल, बट वो ये चीज समझते कि बस ये है, इसके अलावा कोई नहीं. मतलब अब अगर मेरी लाइफ से पर्सन चला गया है, तो अब मेरी लाइफ स्टॉप हो गई है, मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती. और मुझे अगर चाहिए तो भी मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गवा के वो चाहता है कि मैं वो रिलेशनशिप में फिर से चला जाऊं, और वो खुद उसकी सेल्फ स्टीम भी कम होती जाती है, उसकी वजह से और ज्यादा वो डिप्रेशन में जाता है.
तो एक सेल्फ एस्टीम भी वर्क करती है आई गेस इसके अंदर। ओके, इसके लिए एक छोटा सा और एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि ऐसा बहुत कम होता है जब आप आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स और अपनी चाइल्डहुड टीचर्स और जिनके साथ आप खेल कर बड़े हुए हैं वो आज भी आपके साथ हो, क्योंकि हम जैसे जैसे एक एक स्टेज को क्लियर करते जाते हैं अपनी लाइफ की, हमारे साथ में नए लोग जुड़ते जाते हैं और इवेंचुअली कुछ लोग पीछे छूटते जाते हैं। तो मैं अगर अपने किसी चडी बडी के साथ नहीं हूं आज और हमारा कांटेक्ट नहीं है, फिर भी मैं जिंदा हूं, फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूं जिसके साथ मैंने दोस्ती यारी की कस्में खाई थी, ठीक है। सो एज वी गेट मेच्योर ओवर द टाइम, चीजें बदलती हैं, लोग नए आते हैं, दे गिव something or the other, they take some things and this is how life goes on। तो जिसको आज ये लगता है कि ये चीज मेरे लिए परमानेंट है, आप कल सुबह उठोगे और आपको कुछ ऐसी इतनी मेस्मराइजिंग चीज मिलेगी कि शायद आप इस चीज को और ज्यादा एडमायर करना ही भूल जाओ। ओके, बिल्कुल। सो इसके अंदर सेकंड, हाँ बोलिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जिसने ये कहा है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं अपनी सेल्फ एस्टीम खोकर भी इस चीज को पाने की कोशिश करूंगा। सो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि मैं अपनी सेल्फ एस्टीम खोकर इसको पाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सामने वाला आपको उतना ही रैपिडली और उतना ही इजीली स्मूथली टेकन फॉर ग्रांटेड लेने के लिए रेडी है, या फिर गिव अप करने के लिए रेडी है। एग्जैक्टली, गिव अप करने के लिए रेडी है, बिकॉज इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, द person in front of you is also into relationship, तो दोनों का 50-50% contribution is must। बिल्कुल, बिल्कुल। Then only you can take it forever, otherwise this is not going to continue for very long। रिलेशनशिप डिप्रेशन में सिर्फ एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो ये अल्कोहल अब्यूज में जो यूथ है वो चला जाता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप एंड और ड्रग अब्यूज, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हाउ टू अवॉइड दैट? Especially to avoid that, I would really like to request and to make this request to all the dear friends of those people, please do not give such advices कि चलो पार्टी करते हैं, you will be out of this, क्योंकि ये इसका solution नहीं हो सकता। आप पार्टी करना चाहते हैं, you definitely do this thing, but इस तरह से नहीं कि आप उसको अल्कोहल में लेके और उसके बाद ये चीज विड्रॉ करने की कोशिश करें, because this will be a very bad idea again। बिल्कुल, बिल्कुल। आसपास वाले लोगों को ही इस चीज का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ही इज गोइंग टू अ बैड फेज, वो इस चीज को करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दिस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि सर जैसे कि स्टीरियोटाइपिंग इन बिहाफ ऑफ डिप्रेशन, लाइक मैं बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं, फ्रेंड्स भी करते हैं और उनके फैमिली भी करते हैं। अगर कोई शेयर करता है कि यार राइट नाउ आई एम फीलिंग लाइक दिस और मैं डिप्रेस्ड हूं, तो वो बोलते हैं अरे यार तेरे को क्या प्रॉब्लम है, यू आर अ प्रिविलेज्ड पर्सन, यू हैव अ हाउस, यू हैव अ कार, यू हैव योर जॉब, एंड देन ऑल्सो इफ यू आर फीलिंग लाइक दिस देन डील विद इट, बी ग्रो अ मैन, लाइक ऐसा बोलते हैं कि बी अ मैन, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब है अपने से ज्यादा और वो लोग भी सेल्फ कॉन्फिडेंट है या फिर वो लोग डिप्रेस नहीं है, तो तू क्यों डिप्रेस्ड हो रहा है? तो ऐसे स्टीरियोटाइप को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, या फिर वो जो लोग प्रिविलेज होते हुए भी डिप्रेस्ड हैं वो कैसे इस चीज को डील कर सकते हैं फैमिली से रिलेटेड? See, on this I want to give a quote here कि some people are so poor that all they have is money। Okay, so yes. I don't think कि पैसे को mental health के साथ जोड़ना is a right part as far as a professional is concerned। मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, पैसा can give you a comfort thing, लेकिन happiness is the core part। अगर आप किसी चीज को लेकर खुश नहीं हो तो आप अगर करेंसी को बिछाकर भी उसके ऊपर सोओगे तो भी आप वो हैप्पीनेस नहीं पा सकते जो आप अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट करके अचीव कर सकते हैं। ओके, सो इवन इफ अ पर्सन इज प्रिविलेज्ड और उसके पास बहुत वेल्थ है, बहुत अच्छी हेल्थ है, उसको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद भी ये चीज हो सकती है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी डीप इनसाइड कुछ ऐसी चीज रूट हो चुकी है, या उसके चाइल्डहुड में ऐसा कुछ हुआ है। इट कैन बी अब्यूज और इट कैन बी सेपरेटेड पेरेंट्स, और it can be physical abuse, mental abuse, or anything, bullying is again a very considerable point in this। ये चीजें हो सकती है जिसकी वजह से उनको ये सब चीजें फेस करनी पड़ रही है, और आज भी ये चीज फेस कर रहे हैं। तो इसके लिए कई सारी थेरेपीज हैं, साइको एनालिसिस हम इसमें यूज करते हैं।
सो दैट हम उनकी उसके डीप रूटेड इश्यूज को फाइंड आउट कर सकें, डायग्नोस कर सकें और उसको ट्रीट कर सकें, ताकि वो आज में रहकर खुश रह सके और अपने आप को फाइंड आउट कर सके, अपनी सेल्फ को वर्थफुल बना सके। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात स्टीरियोटाइपिंग की, तो जनरली मैंने ये देखा है, द स्टीरियोटाइपिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल स्टिग्मा। पीपल फील, स्पेशली पेरेंट्स फील दिस, ये अगर हम अपने बच्चे को किसी डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दे टर्म इट एज अ दिमाग का डॉक्टर, किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएंगे, तो पीपल विल से कि इनका बच्चा पागल हो चुका है, पागल हो चुका है। बिल्कुल, ये स्टीरियोटाइप है। बिल्कुल, बस एग्जैक्टली दिस सेंटेंस इज अ स्टीरियोटाइप। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस चीज को ब्रेक डाउन करें। हमें अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ में, ह्यूमन रिलेशंस में अवेयरनेस को स्प्रेड करने की बहुत जरूरत है, जहां पर लोग इस चीज को समझें कि जिस तरह आपका हेडेक है, आपका स्टमक एक है, उसी तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरे डिसऑर्डर्स भी सेम है, और हमको इस चीज में बिना किसी हेजिटेशन के खुल के सामने आने की जरूरत है। Yes, sir. Again, one question, a really big question came here. What if you are not able to share how you feel when anyone, because they are not interested to hear it? How can one share what he is feeling at a particular time where he is really want to? मतलब किसी से share करना चाहता है, but people are not willing to listen. Yes, तो yes, उसके yes. लिए क्या कर सकते हैं? So first of all, I want to ask to that particular person कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप ही की तरह एक नॉर्मल लेमैन पर्सन, जो शायद ऐसी ही किसी चीजों से गुजर रहा है, वो बैठेगा, वो अपने पूरे दिन को बर्बाद करेगा और आपकी बात सुनेगा। दिस इज नियरली इम्पॉसिबल इफ यू आर लिविंग इन अ 21st century world. The life has been so fast, and that is why there is a subject, there is a complete stream of people called psychologists and mental health professionals who are there to help you out. अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज दोस्तों के पास जाने से पहले एक बार एक जेन्युइन एडवाइस जरूर लें। ऐसे ही किसी पॉडकास्ट, ऐसे ही किसी वेबिनार में आपको वो चीज मिल जाए कि हाँ, मुझे पता है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस पर्सन से कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करना है, और मैं अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे शेयर कर सकता हूँ। और मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये चीज बोलता हूँ जब वो हेजिटेट कर रहे होते हैं कुछ बताने से, सिंपल एक सेंटेंस कि अगर आप यहाँ नहीं बताओगे तो फिर आप कहाँ बताओगे। बिल्कुल। देन आफ्टर दैट दे गेट ओपन कि हाँ, अब मैं इस पर्सन के साथ अच्छी तरह से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ही इज रिलायबल इनफ टू मेक माई थिंग्स कॉन्फिडेंशियल, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लॉज ऑफ द मेंटल हेल्थ पार्ट, कि हम चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। बिल्कुल। आई गेस जो दो पार्ट थे हमारे रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप के, जो था फैमिली और जो स्पाउस का जो पार्ट था, रिलेशनशिप विद वाइफ और गर्लफ्रेंड, ये हमने टच कर लिया है। लास्ट पार्ट है हाउ टू डील विद वर्क रिलेटेड डिप्रेशन। मैं सर आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स, एज यू ऑल्सो नो, मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बताना चाहूंगा कि 42.5 कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज इन इंडिया सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन। मतलब हाफ ऑफ इन कॉर्पोरेट सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन, वर्क रिलेटेड इश्यूज। Almost half. Yes. Totally getting it. So there is again a big question. See, everybody wants a job in MNC. सबको चाहिए कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूं, मेरा पैकेजेस 6 figure सैलरी होना चाहिए, आई शुड हैव अ अपार्टमेंट, आई शुड हैव अ कार एंड एवरीथिंग। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि क्या मैं इस सब के बाद भी सेटिस्फाइड हूं। अगर आप जूनियर मैनेजर हो तो आपको मैनेजर बनना है, अगर आप मैनेजर हो तो आपको टेक्निकल टीम में जाना है जहां पर आप प्रोफेशनल्स कहलाओगे, उसके बाद आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाना है, फिर आपको सीईओ बनना है एंड व्हाट नॉट। ओके, सो वन हैज टू गेट दिस थिंग वेरी स्ट्रेट इन देयर हेड कि अपने आप को इम्प्रूव करना, अपनी नॉलेज को, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाना, अपने स्टेटस को बढ़ाना इज नेवर रॉन्ग, वो कभी गलत नहीं है। लेकिन एट व्हाट कॉस्ट यू आर डूइंग दिस। आप 24 आवर्स में से 16 आवर्स इनिशियली वर्क कर सकते हो फॉर 1 year or 2 year, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट? you after that you will be having a family, prioritize your personal life and professional life. yes, exactly. So आप काम करो, लेकिन आप एक वर्क लाइफ बैलेंस करके एक टर्म होता है, उस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है तो इवन you won't be able to spend that money, hard earned money which you have earned out of that 16 hours of job every day. Okay, so it's very good that if you have joined or if you are already in a
वेरी गुड कंपनी एंड यू आर वर्किंग देयर, लेकिन हमको वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और वर्क लाइफ बैलेंस के में आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों इक्वल पार्ट प्ले करती है। बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन आया निकिता मेहता से, हाउ टू लिव इन प्रेजेंट एंड नॉट ओनली थिंक ऑफ फ्यूचर टू गेट डिप्रेस्ड। मतलब अगर पीपल हैव दैट इन माइंड दैट राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग स्ट्रेस, बट व्हाट इफ इन फ्यूचर आई विल गेट डिप्रेस्ड, मतलब कुछ चीजें आने वाली है मेरी लाइफ में या ऐसा कुछ, तो उससे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, तो फ्यूचर में अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हो तो उसका क्या आंसर हो सकता है इसमें? ओके, सो द थिंग इज कि इसका एक ही टर्म है, शायद इसका आंसर उसमें मिल जाएगा, एंड दैट इज अनसर्टेनिटी। मैं उन सभी व्यूअर्स से पूछना चाहूंगा जिनका एक ऐसा कोई सिमिलर क्वेश्चन है कि आपको क्या आइडिया है और कितना पता है कि आप फ्यूचर में आज से 1 साल बाद कहाँ होगे और क्या कर रहे होगे, या 1 महीने बाद कहाँ होगे और क्या कर रहे होगे। यू डोंट नो अबाउट दैट। सी, COVID-19 was such a this pandemic situation was very sudden and they shook the world basically। ठीक है, तो ये बहुत सडन था, ये एकदम आया और बहुत सारे लोगों को लेकर चला गया। इनफैक्ट स्टिल वी आर काउंटिंग द नंबर्स। सो हमको ये कभी पता नहीं होता कि हमारे फ्यूचर में हमारे लिए क्या है। सो इट्स बेटर कि जो चीज बंद है उसको बंद रहने दिया जाए, और जो हमारे सामने आज है, टिल डेट, टिल टाइम, मैं उसको अगर प्रॉपरली जी पाऊंगा, मैं उसको 100% दे पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई प्राइम एम टू मेक दिस podcast a great success, and this is the only thing I have planned for today. No plans for tomorrow, no plans for the future. So I'm doing it with all my effort without worrying that कल मेरे साथ क्या होगा। In this case, अगर आप आज का काम, आज का शेड्यूल, आज का टारगेट्स अच्छी तरह से अकम्प्लिश कर सकते हैं, तो शायद आपको फ्यूचर की वरी होगी भी नहीं। बिल्कुल सर। एक सर क्विक क्वेश्चन, एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस में हुआ था मेरे फ्रेंड को, उसके अंदर उसको आई डोंट नो व्हाई ही इज अ लिटिल बिट टेंस। सो आई वाज वेरी शॉक्ड, मी एंड माय फ्रेंड, वी वर 3 लोग थे वहां पे, तो वी गॉट रियली शॉक कि इस एंजाइटी अटैक को कैसे रोके। तो व्हाट इज द रियल लाइक व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी अटैक फर्स्ट, एंड हाउ टू ओवरकम। अगर आपका फ्रेंड आपके साथ में है तो उसको कैसे उसको रोक सकता है उस एंजाइटी अटैक को। आई गेस कुछ चीजें कैन यू रिपीट व्हाट हैपेंड विद योर फ्रेंड? सो द थिंग इज दैट वो एक रात को ठंड में आया था घर पे, और ही मस्ट बी लाइक कंज्यूम अ लिटिल बिट अल्कोहल। सो और उसने कुछ ज्यादा पहन नहीं रखा था, मतलब ही वाज वेयरिंग एनी शर्ट, एंड द न्यू ईयर का टाइम था, तो उसकी सांस फूलने लगी और बहुत ज्यादा उसको डर लगने लगा कि मेरे साथ में कुछ हो जाएगा। मतलब एंजाइटी अटैक्स आर लाइक दिस कि मेरे को मिड लाइफ क्राइसिस या फिर मेरे को डर लग रहा है बहुत ज्यादा किसी भी चीज से। तो वी गॉट रियली स्कैर्ड दैट ये व्हाट इज हैपनिंग टू हिम एंड हाउ कैन वी डू दिस। तो हमने क्या किया, उसको बिल्कुल गर्म करने की कोशिश करी और बिल्कुल उसको बोला कि नाउ यू आर एट अ सेफ प्लेस, सो यू डोंट हैव टू वरी अ लिटिल। Okay. See, this can be out of many reasons. As you have told that he have consumed alcohol, so out of alcohol, hallucination can occur. And as you have just mentioned that was New Year's time, so it was very cold out there. Okay. Yes. So if we mix, get a combine of these two things, तो person can have a short of breath. और इस वजह से और hallucinations की वजह से वो ये चीज फील कर रहा, माइट बी पॉसिबल वो ये चीज इस तरह से फील कर रहा हो कि मैं प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आई एम फीलिंग एज इफ आई एम लूजिंग माई ब्रेथ, और इस वजह से वो उसको एक पैनिक अटैक की तरह एक एपिसोड आया हो सकता है, ये चीज हो सकती है। एंड देन व्हेन यू हैव ट्राई टू कंसोल हिम, आप उसके पास में रहे, आप उसको वार्म करने की कोशिश की, उसके सेंसेस जैसे ही नॉर्मल होने लगे, दैट माय फ्रेंड अतुल इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी एंड ही इज कंसोलिंग मी, in that case he came back to normal after some time. Yeah. One more question has come. Many people I have seen avoid caring their physical health due to the office timing, but then it's gradually affecting their mental health as well. Suggest the way, please. Okay. So see, some people who are working from morning 4:30 to evening or afternoon 1:30, some are working from 8 in the evening till morning 8 in the morning. So सबका शेड्यूल अलग है और सभी लोग अलग तरह से इस चीज अपने जॉब्स के टाइमिंग्स को चूज करते हैं, या फिर हो सकता है उनको उसी तरह से मिले हों।
लेकिन हमारे पास 12 आवर्स ऑफ जॉब, फॉर एग्जांपल 10 आवर्स ऑफ जॉब के बाद 14 आवर्स ऑफ लाइफ वी स्टिल हैव इन दैट डे। और ये हमारी प्रायोरिटी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम अपने वर्क को देते हैं, कितना फिजिकल हेल्थ को देते हैं, कितना फैमिली को देते हैं, और किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। सो इवन इफ वी आर ग्रोन अप एडल्ट्स, अब हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि हम टाइम टेबल बनाएं किसी चीज का। हम यही सोचते हैं अब हमको इस चीज की क्या जरूरत है, लेकिन द फैक्ट इज यस वी नीड इट। एवरी इंडिविजुअल हु इज लिविंग, उसको एक शेड्यूल की जरूरत है। इफ अ पर्सन इज 60 ईयर ओल्ड तब भी उसको शेड्यूल की जरूरत है, और इफ ही इज 60 ईयर ओल्ड तब भी उसे एक शेड्यूल की जरूरत है। अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ चलते हैं तो देन देयर विल बी नथिंग लाइक कि हम इस चीज को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी प्रायोरिटीज को डेफिनेटली उस शेड्यूल में पोस्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आई हैड फॉर यू इज दैट इट इज बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन। सो as you said, as you are psychologist and you have an organization called Dr. Psycho. So why therapy is very important for us? See, थेरेपी को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इट्स ट्रीटमेंट। जितना किसी चीज हेडेक होने पे या फीवर होने पे जिस तरह से पैरासिटामोल की जरूरत होती है, उसी तरह से किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, उसको एलिवेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमको थेरेपी की जरूरत होती है। थेरेपी बेसिकली इज दैट सपोर्ट सिस्टम जो आपको फॉल होने से बचाता है और आपको धीरे 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 ग्रेजुअली राइज करने के लिए मोटिवेट करती है। दिस इज लेमैन लैंग्वेज डेफिनेशन ऑफ थेरेपी। सो थेरेपी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि बेसिकली थेरेपी का मेन मोटिव ये है कि आपको एक नया नजरिया, नया पर्सपेक्टिव मिले। आप जो चीज सोच रहे हो कि देयर इज ऑल ब्लैक इन फ्रंट ऑफ मी, but I don't think you have turned yourself to see that there is all light coming from behind. Okay, so हम एक थेरेपी के थ्रू एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं, जहां पर वो पर्सन अपने आप को उस पोजीशन में रख के और अलग अलग सिनेरियोस को, अलग अलग सिचुएशंस को टेस्ट करता है, अपने आप को टेस्ट करता है उन सब चीजों में, एंड इन दैट केस ही फाइंड द आइडल पोजीशन जहां पर वो अपने आप को रख के और इम्प्रूव कर सकता है। जरूरी नहीं कि एक पर्सन जिस थेरेपी से बेनिफिटेड हो वो दूसरा पर्सन भी उसी थेरेपी से बेनिफिटेड रहेगा। देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव अलग है, सबका नजरिया अलग है, सबकी पर्सनैलिटी अलग है। सो डेफिनेटली थेरेपी इज इंपॉर्टेंट एंड आई हैव गिवन इट अ टर्म टेलर मेड। टेलर मेड इज हर पर्सन के लिए एक कंप्लीट एक शेड्यूल, हाँ, एक पर्टिकुलर पूरा हायरार्की क्रिएट होती है जिसमें उसके फर्स्ट सेशन से लेके उसको किस तरह से गाइड करना है, कैसे काउंसिल करना है, क्या टेक्निक्स दी जाएगी, उसको थेरेपी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसको थेरेपी किस तरह से देनी है, क्या क्या चीजें उसके आसपास रहनी चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरह के लोग उसको सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर गिविंग एनीथिंग टू एनी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि कई बार ये बैकफायर हो जाता है। What we discussed here and what is the age group of people which we are discussing is from 20 to 30 or 35, right? And that time if somebody is having anxiety or depression in college or he's having a job also, but right now we can see that in India therapy is very expensive. Like बहुत सारी जगहों पे psychiatrist और psychologist charges really high for 1 hour or 2 hour session. सो एक स्टूडेंट के लिए एक जो जॉब के अंदर इतना ज्यादा नहीं कमा पाता है बट फिर भी उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो आई गेस बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस ऑफ थेरेपीज वो लैग कर जाता है। और इसके लिए आप क्या मतलब एक कोई क्या अगर कोई प्रोसीजर है इसका या फिर कोई सोल्यूशन है इस चीज का कि इसका थेरेपी का बेनिफिट सब लोग उठा पाए, तो आप बताएं इस चीज का। सी यस, आई एग्री विद दिस ऑन दिस पॉइंट कि see this is basic concept of supply and demand. जब आपको मालूम है कि सप्लाई बहुत लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज्यादा है तो the prices will hike, just like अभी जो मास्क और सैनिटाइजर्स की प्राइसेस जो चल रही है, बस उसी तरह से ये चीज है। डिमांड बहुत है, every person is suffering from some or the other issue, लेकिन उनको वो चीज या तो मिल नहीं रही है या मिल रही है तो बहुत ज्यादा फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। बेसिकली इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर पर्सन, बट मैंने जब ये जर्नी को स्टार्ट किया था, द मेन मोटिव जो हमने लिया था वो यही था, टू रिड्यूस द साइकोलॉजिकल स्टिग्मा। सो वी हैव डन मेनी सच
seminars, workshops, nukkad nataks and everything, just to spread this awareness कि ये ऐसी भी कोई चीज होती है. And we have started our services very nominally. And I don't think people know about this or not, but we are still the most nominal in the town, charging very nominal fees, and especially even more nominal from students, those who are in some college or they are in some school or something. Yeah. So this can be done. And again, I want to add in this कि इस तरह के पॉडकास्ट और वेबिनार्स, और अगर हम इस तरह के फ्रीक्वेंटली चीजें करते रहें तो बहुत सारे लोग हैं जो बेनिफिटेड रहेंगे उनको, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम नॉलेज यहाँ मिल सकती है और वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं. बिल्कुल. एक सर लास्ट में इसी में एक क्विक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. एज यू सेड दैट द चार्जेस आर नॉमिनल फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स. That's really nice, sir. जो भी ऑडियंस में अभी अगर देख रहा है is suffering from a clinical depression or anxiety, he can go to sir's page, Dr. Saiko, and contact to sir about it, and they can have a one-on-one session. One more thing I would like to ask is that, sir, therapist है, but जैसे कि अगर मेरे को थेरेपी करनी है, अभी 5 या 7 लोग मेरे टाउन में है, सबकी चार्जेस लगभग सेम है, तो ये तो वो चीज हो गई ना हिट एंड ट्राई वाला, कि अगर मैं फर्स्ट वाले के पास में गया, उसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो मेरे को 7 अलग अलग लोगों को, 7 अलग अलग थेरेपिस्ट को आई हैव टू पे मनी टू फाइंड अ राइट साइकियाट्रिस्ट फॉर मी. सो इट इज अ वेरी व्हाट वी कैन से बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग है ये, कि बार बार नए नए साइकियाट्रिस्ट को ट्राई करना पड़ता है टू जस्ट गेट अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड यू वेल. उसके अंदर क्या करना चाहिए? See, the thing is, there are many ways to find out this thing. You can also contact a person who has previously taken or previously acquired this therapy part or counseling part. In that case, you can go to review part, or you can specially talk to that person कि how did you felt, आपको कितना benefit हुआ है इस चीज से, और क्या मैं अगर इस पर्सन को अप्रोच करता हूँ, इस प्रोफेशनल पर्सन को अप्रोच करता हूँ, तो क्या मैं बेनिफिटेड रहूंगा या नहीं रहूंगा. देयर आर पेजेस, देयर आर पीपल हु राइट रिव्यूज, एंड they sometimes write very harsh, they sometimes write very politely, but they write the truth part. उनको ये चीज पता है कि मैं अगर यहाँ पर सही नहीं लिखूंगा तो the person who is coming and reading this will be affected adversely. So you can take their thing. आप उन चीजों को नोट कर सकते हो, उन चीजों को पढ़ सकते हो, so that आपको राइट पर्सन मिले और वो थेरेपिस्ट मिले जो उस पर्टिकुलर थेरेपी में मास्टर हो. बिल्कुल बिल्कुल सर. All right, sir. So thank you so much, sir, for sharing your knowledge on this important topic, which is anxiety and depression. I know बहुत सारे ऑडियंस को ये चीज, अपने जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर मिल गया होगा. और अगर कोई भी अगर the thing which I said, that अगर कोई क्लिनिकल डिप्रेशन या एंग्जाइटी से गुजर रहा है तो सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पेज को जाके फॉलो कर सकते हैं. Again, I would like you to say to your audience also, sir, that if you can appeal that Inspiro का जो पेज है, plus we have a YouTube channel also, so you could appeal to your audience also that they can follow or subscribe our channel. Sure, definitely. And I would like to pay sincere thanks to Inspiro management for conducting this session, and all my viewers and audiences जिन्होंने इतने अच्छे questions पूछ के इसको एक बहुत success session में convert किया है. This is all because of you. The setup and everything is just for the viewer part. Okay, so and this is not the first session and not the last sessions to be done. We are going to collaborate for sure with Inspiro management, and Dr. Saiko are going to do it. We are going to conduct some great webinars and seminars, conferences, workshop. Even you can participate in that. Podcast will be coming one by one, back to back. Okay, so you can go to all the pages, and all the informations are there in the description part, so you can just go on with the thing. This was a very friendly collab between Inspiro and Dr. Saiko, and we are looking forward for such more, and especially to you, to our wonderful audience. So thanks a lot, and hope you're going well. Thanks a lot. Stay good, stay happy, and thank you so much. Thank you so much, all the audiences. Thank you, Atul. Thank you. Yeah, great day. Bye bye. So guys, that was our session, a podcast with Inspiro. जैसा कि आपको चीज पता चल गई, किसी भी एंजाइटी या किसी भी डिप्रेशन के बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, राइट. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी.
अगला जो पॉडकास्ट है वो संडे को होने वाला है, स्टे ट्यून फॉर दैट। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसके अंदर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, थैंक यू।